belai belai ke hambai phading ke sing seni opening rasamung sing khnai mankha taya bahai kana warno khomlung musical college no belai belai ke hambai sing no belai ke khna thok rasamung tangsa khna rei rama bagai phading ke bon yawlo nang koi na ne seni players no dakti khlai bon pavilion no kivili phana bagai players no koi nai jani ja pavilion no kivili phadi norni bagai chere rok nasing laijak taya bahai kana bon yawlo no sing joto seni adong sono koi nai field thana bagi sing jesik dakti klaiman asam kaham nai tamne ke jora belai ke lai tongo yagulo sing jora riman laikla kaun bagi nor jotono koi nai dakti klai yango pavilion no kivili phana bagi players ono koi jago jani ja pavilion no kivili phana bagi dakti klai Good afternoon, football fans, and welcome to the Khumlung Stadium. TTAADC presents this Super League Football Tournament में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज मैच होने जा रहा है ख्वाई वॉरियर्स वर्सेस गोमती ग्लेडिएटर्स, जो अपने अपने मजबूत खड़े लेकर आएंगे आज आप सभी के सामने और कुछ ही क्षण में मैच शुरू होने जा रहा है। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप सब जुड़ जाइए हमारे साथ। जो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ गए हैं धन्यवाद, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं धन्यवाद, एवं जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम शुरू होने जा रहा है द मैच। Phadingkai koina hanai sini arong sono tinini joto oron narwai ngi phanero no koinai field thangai sini players rok baksakhe borno best wishes rui tinini tournament sing chengir lene aban bai koina hanai sini players rok joto ready tongna bagai chere rok bo joto ready tongna bagai borno score kait langnani bagai koi jao tau tai buksong sing tai bisidik lailia belai time short ni bising sing chengna ni bagai thangai tongo norok jese goi mana asuna kaham nai in so jotono koyo sekangai thangna bagai tau toi busong sini players rok tabu nongkhori tongo and tini abo hanggang ke 10th match TSL 2024-2025 nengai mathung jagai tongo tai abo haikano Khumlung Stadium sing joto khailijak sini players rok jotono tabu mato nongkhlaijak sing borno best wishes rui sing tinini tournament no sing chengir na bakhak thanglai tongo sini adam som joto sekangai thanglai tongo tai borno chibai rui sini tournament no chengnani sing chaitok lai tongo Ladies and gentlemen, you're watching the 10th match of the TSL 2024-25 and the match today is between the Khwai Warriors and Gomati Gladiators. What a match it's going to be today here at Khumlung Stadium. It's going to be an awesome day and both the team looking really fit and fine. The weather is really good and we hope that that's going to be a super match today between the Khwai Warriors and the Gomati Gladiators. आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस खूबसूरत से मैदान में खुमलुंग स्टेडियम में, जहां आज होने जा रहा है इस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का 10th मैच। जी हाँ, 10वां मैच आज होने जा रहा है एवं ग्रुप बी का 5वां मैच। तो आज देखना ये है कि किसके झंडे लहराएंगे, कौन अपने फतेह करेगा। और इस खूबसूरत से दिन में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गोमती ग्लेडिएटर्स इन पिंक एंड खोवाई वॉरियर्स इन ब्लू एंड व्हाइट।
가전이 타고 성 너럭 테니 나이만 동어 어로 TTAADC니 official page ni besing tikay obo match sing live 방송하기 정도 tay abo hay keno norni bus kango tabo football kick-off play tini tournament no start play na bagay sini adong song ro batalajak borno belai ke hambai borok tabo khano asuk jorati energetic borno nai nai khangai taibo kha baso taibo sini sikla chalai ro taibo kha basa nai nyang kha khayo kubun sal rogo sing taibo kaham kaham players ro sini haste ni bagay sing nugui manai awani bagai belai ke mokol khai chomoi sing naina nango sini tabuni sikla chalai ro busuk jorate ke tabung serengai sekangai dong awana sing oron nugui manai dong and so over haikeno sing sini tournament no sekangai tlang lene sini chererok belai ke khatung khajang lajak oro belai nai totok lai borok ri kan chumui phailejak borok tabuk jani ja pibeli no kibel thanglane belai ke nai totok lai borok sini players no lam sogui oro sekangai tui phega te aba hai keno o cherero nibo salsa belai ke thinang nai totok nai ni sing once ago tai diayo tai suribo belai ke hambai sini referees tai officials ro borok jote reading lejak tai aba hai keno players ro khorsa tai khorsa no borok chibai relai best wishes relai borok thanglai dongo boni yagulo no phari ke sing naiman nai tinini TSL 2024-2025 10th match between Khwai Warriors and Gomoti Gladiators. Acha, Taukte Busong. Today is the 10th match of the TSL 2024-25, and which is presented to you by the TTAADC government. It's really awesome to see the youngsters coming up in such a manner, and it's so beautiful to see the players in the ground at Komalung Stadium. And this is for the first time in the history of Tripura that any match as such is being shown in live from the TTAADC official page. That's true actually मिल्टन जी एंड आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स का भी थर्ड मैच है एंड हमारे खोवाई वॉरियर्स का भी थर्ड मैच है देखना ये है कि कौन ज़्यादा बेहतरीन कर पाता है और आज जीत कर जाता है यूँ तो आज ये 10th मैच है और एक बार फिर से जैसा कि मिल्टन जी ने कहा हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया है कि फुटबॉल लवर्स को एक बेहतरीन स्टेडियम दिया जाए साथ ही साथ फुटबॉल लवर्स फुटबॉल फैंस आगे जा पाए और अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम को कह सकते हैं इंजॉय करके इस मैच को इंजॉय करें साथ ही साथ प्लेयर्स को सपोर्ट करें और हमारे ऐसे प्लेयर्स और आगे जाए त्रिपुरा का नाम रोशन करें नेशनली एंड इंटरनेशनली तो कुछ ही देर में स्टार्ट होने जा रहा है द मैच जिसका इंतज़ार था हमें खुमलुंग स्टेडियम यूँ तो आप सब जानते हैं वन ऑफ द अमेजिंग बेस्ट स्टेडियम है त्रिपुरा में और अब जो मैच होने जा रहा है वो होने जा रहा है खोवाई वॉरियर्स वर्सेस गोमती ग्लेडिएटर्स The players, the team. हमारी टीम रेडी है दोनों ही टीम अपने अपने स्ट्रेटजीज के साथ एंड आज शायद हम देख पाएंगे खोवाई वॉरियर्स को एक अलग रूप में क्योंकि आपने पिछले 2 मैचों में देखा था कि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक पड़ गया था पर आई एम वेरी श्योर कि आज एक अलग बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हमारे वॉरियर्स आए हैं साथ ही साथ हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स जिन्होंने पिछले 2 मैचों में रॉक किया था
आज लगता है कि आज वो हैं उस रूप में है, बट स्टिल आई एम विशिंग द वॉरियर्स कि आज बेहतरीन करें और अलग स्ट्रेटेजी जरूर अपनाएं ताकि, और यहाँ हमारा गेम शुरू, द मैच स्टार्टेड। अब हिकनो थिनि निजे टूर्नामेंट चेंगे रखा एंड तख्ते बुक्सों नरो नाई मानी तो सुनो लाइव TTADC नि ऑफिशियल पेज हो तख्ते बुक्सों थिनि निजे टूर्नामेंट नगे तो अब Khwai Warriors versus Gomoti Gladiators बेले के नाइट तो के बरक थंगलाई तो ताई अब हाई स्टेडियम हो जे बरक थंगनी जोरा मारमनी अब बेले के कपाल काम ताम नहीं बा संगताई कोवन स्टेडियम रो थंगी नहीं मनी आसुक Night Dog Stadium nya phano je masak joroti sini players of chai toka thangnani tai aba haigano miani match jeta belai ke Night Dog play West Vikings versus Unokuti challengers of the thanglaimani 3 equal borok kone team no tinta play score claimani belai ke Night Dog play miani match bo thangjaka judio phano stadium kisa chikonang phano but today this is another day and another awesome day because it's really nice to see the way the players are playing today, passing with each other, and you know it's beautiful the way they tackle the ball between the players today. And so Soromita, what a wonderful day today to start with, and we have commentary. Commentators with us, Mithun Das and Soromita Bhomik and me, Milton Deeperma. The three of us will be commentating in different languages. The two of them will be in Hindi and also I will be doing in Kokorok and English. So you will be listening to us live and also will be able to watch us live at the TTAADC official page. मिल्ट्री जी, यूँ तो एक चीज़ आई नोटिस दैट यस अभी जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ है गोमती ग्लेडिएटर्स को आपने शायद देखा, दे आर फुल ऑन जोश, बट वहीं वॉरियर्स आज एक लंबे शॉट्स के साथ अभी एक जोश के साथ लेकर जा रहे हैं गोल पोस्ट की तरफ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके पहले खोवाई वॉरियर्स का एक और मैच हुआ था बाईजलबारी स्टेडियम में, जहां उनके अगेंस्ट में थे वेस्ट रॉयल्स, जहां शायद उनका दिन नहीं था, इस कारणवश वो जीत नहीं पाए। इसके बाद एक मैच था हमारे खोवाई वॉरियर्स का, जहां उनका अच्छा था उनका प्रदर्शन, पर स्टिल वो दिन भी शायद उनका नहीं था। पर आज शायद लगता है कि एक अलग रूप में आए हैं हमारे वॉरियर्स और आज जरूर एक बेहतरीन प्रदर्शन देंगे खोवाई वॉरियर्स। वहीं अगर देखा जाए आप गोमती ग्लेडिएटर्स को देखें तो नॉर्थ पैंथर्स के साथ जब उनका मैच हुआ था खोमलुंग में इसी स्टेडियम में, तो गोमती ग्लेडिएटर्स ने 5 गोल लिए थे। जी हाँ, उनका स्कोर था 5 और 2-5 से वो जीते थे। वहीं एक बार जब गोमती ग्लेडिएटर्स वर्सेस वेस्ट रॉयल्स हुआ था, तब भी किला में गोमती ग्लेडिएटर्स 3-0 से जीते थे। तो आज एक बार गोमती ग्लेडिएटर्स जरूर चाहेंगे कि क्योंकि उनका तीसरा मैच है तो तीसरा मैच भी वह जीतना चाहेंगे। उनकी तरफ से प्रदर्शन रहेगा कि वह जीते, आज भी उनकी तरफ से जीत हासिल हो। पर वहीं वॉरियर्स को अगर हम देखें तो अभी स्टार्टिंग से अब तक वॉरियर्स बेहतरीन कर रहे हैं एंड आशा करते हैं कि आज तो जीत पक्का उनकी ही हो, क्योंकि 2 मैच पहले लगातार हारने के बाद ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि आज का मैच भी वह हारे। आज उनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ अलग से स्ट्रेटेजी भी उनकी तरफ से मिल रही है मुझे, जो पिछले मैचों में हमने नहीं देखी थी। जो जोश पिछले मैचों में थोड़ा कम था, आज एकदम स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं द वे दे आर पासिंग द बॉल्स, दैट्स ग्रेट। तो होपफुली वी आर होपफुल कि आज खोवाई वॉरियर्स बेहतरीन करेंगे फॉर श्योर। It's the opportunity for the team over there, Gomoti Gladiators. They would have had the opportunity to make their first score, but there was not enough effort from the team, and so I guess they really need to look into the players and push them so that they can
make the first score at least in the first half and make a pressure for the Kauai Warriors. But nevertheless, both the teams looking really cool. Both the teams looking really cool today, starting it really soft and steady. And you know, the passes that are being played are really beautiful, taking the players away from the goal post and you know, trying to send the ball towards the Kauai Warriors. Now pushing the ball towards the box, and probably this could be a dangerous, but there were no players from the team, and they really need to work really hard on this issue, because I see that both the team are so relaxed today. Probably it's because they just got started with the match, but you know, they shouldn't be missing out the opportunities. And here is the signal for the offside from the linesman. बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी एवं मिल्टन जी, यहाँ एक चीज देख रहे हैं आप कि गोमती ग्लेडिएटर्स एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं अटैकिंग का। एंड क्योंकि उनका अटैकिंग अच्छा है तो उस हिसाब से खोवाई वॉरियर्स को डेफिनेटली उनका डिफेंस अच्छा बनाना चाहिए। मिडफील्ड में जब भी बॉल पास हो रहा है उनकी तरफ से ले लिया जा रहा है, हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स की तरफ से बॉल ले लिया जा रहा है एंड गोल पोस्ट की तरफ उसको धकेला जाए ताकि एक गोल उनका पहले हाफ में ही हो जाए। और आप जानते हैं जैसा कि पिछले मैच में हमने देखा था, कल जो मैच हुआ था लेफुंगा में, उसमें भी आपने एक चीज नोटिस की थी, पहला हाफ का अगर गोल पहला हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा प्रेशर दे देता है। तो यहाँ एक फ्री किक मिला है। ओके मिस ओके, तो यही बात है कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, जो कि मिल्टन जी ने कहा है ऑलरेडी। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर गोमती ग्लेडिएटर्स हो सामने, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स के आपके पिछले 2 मैचों में आपने देखा होगा एक भी अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करते हैं अपने अटैकिंग के लिए। तो वही डिफेंस आपको या तो अच्छा बनाना है, खोवाई वॉरियर्स को बेहतरीन बनाना है डिफेंस, और साथ ही साथ अपने आप को जोशीला रखना है फर्स्ट हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी। एंड फर्स्ट हाफ में हो सके तो स्कोर करना ही है अगर आपके सामने है गोमती ग्लेडिएटर्स, क्योंकि लास्ट पिछले 2 मैचों में उनका टोटल अभी स्कोर हुआ है, पॉइंट्स हुआ है 8। पहले मैच में उनका 5 था एंड दूसरे मैच में उन्होंने 3-0 से हराया था। तो इस बार भी वह चाहेंगे कि वह जीते, बट वहीं वॉरियर्स देखा जाए तो आज वॉरियर्स अलग स्ट्रेटेजी के साथ हैं। उनके कोच, उनके कैप्टन मैं देख पा रही हूँ, दे ऑल आर इन डिफरेंट एनर्जीज देयर। सो डेफिनेटली आज हम चाहेंगे कि उनकी तरफ से ही पहला गोल रहे। ओके, दैट वाज अ मिस। बहुत खूबसूरत ट्राई बाय गोमती ग्लेडिएटर्स, जो कि मैंने कहा मिल्टन जी बहुत खूबसूरत ट्राई कर रही है हमारी गोमती ग्लेडिएटर्स, और यही हम चाहते हैं कि हमारे खोवाई वॉरियर्स भी सेम जोश दिखाए, सेम ट्राई दिखाए, सेम अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलेगा। Absolutely, and now is the opportunity for the Gumati Gladiators, since they are all over there inside the box, and again it's a throw-in for the Gumati Gladiators once again. And this can be dangerous for the Kauai Warriors now, because if the Gumati Gladiators makes their first score, and them making the first score and putting a pressure on the Kauai Warriors, it's going to be really a nice way to put a pressure to the team, so that they can put more scores in the scoreboard in the coming few minutes or so. It's just 9 minutes past, and there's been really nice push over there, and oh, what a save by the goalkeeper over there from the team of Kauai Warriors. That was really an awesome save.
मतलब यहाँ ट्राई हो रहा है ख्वाई वॉरियर्स के द्वारा भी, और हम देख पा रहे हैं ख्वाई वॉरियर्स बार बार ट्राई कर रहे हैं, पर कैसे ना कैसे यहाँ मिडफील्ड के द्वारा या लेफ्ट विंग से हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स अपने बॉल्स को पास कर ले रहे हैं। पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन कोशिश मिल रही है हमें ख्वाई वॉरियर्स के द्वारा। ये गोल हो सकता था, जस्ट थोड़े से के कारण नहीं हो पाया। और अभी अगर गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा एक गोल हो गया तो वही एक प्रेशर, जैसा कि मिल्टन जी ने कहा, प्रेशर मिल जाएगा वॉरियर्स को। वहीं ख्वाई वॉरियर्स की तरफ से अगर एक गोल हुआ तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम अब और गोल कर सकते हैं। और जहां तक हम देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो भी किया है वो है 5, वो भी किया गया है गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा। तो ये थोड़ा सा एक प्रेशर आ जाता है कि अगर हमारे पास एक अमेजिंग टीम हो तो। वहीं ख्वाई वॉरियर्स आज एक अलग रूप में है, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है आज कुछ अनोखा दिखने वाला है हमें हमारे ख्वाई वॉरियर्स के द्वारा। एंड अगेन अ मिस। वही है मिल्टन जी, थोड़ा अपॉर्चुनिटी हमें देखना ही है। अगर अपॉर्चुनिटी आप सही जगह नहीं देख रहे हैं, जैसा कि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि ख्वाई वॉरियर्स के द्वारा ट्राई हो रहा था पर वही सेम है, गोल पोस्ट के आसपास से नहीं, थोड़ा दूर चला जाता है। वहीं आप गोमती ग्लेडिएटर्स को देखें तो एकदम पास से जाता है, वो जो गोल होता है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है या होने वाला है। इट फील्स लाइक दैट। Right, because both the teams, are really, of the same, pace. The runners over there, the defenders, the strikers over there are really, good. We have also seen the way they play in the previous match in Killa. The way the players from Gomoti really knows to play, in such kind of scenario. So the way they shoot the ball, it's really strong, and this can be a dangerous situation again. Lucky it is for the team. The goalkeeper, I think, has been hurt because there's been a hit over there. देखिए जी, हेलो, नमस्कार। जिस तरह से अभी ये मौसम बना हुआ है, देखना है कि पक्ष जो किसका भारी होता है और किसका पलड़ा झुक जाता है, क्योंकि आज का मैच जो दो टीमों के बीच है उनमें से एक को पहले ही एक अच्छी पॉइंट्स मिल चुकी है और दूसरे को पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो देखना है कि वो पॉइंट्स हासिल कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि गोमती जो है वो लड़ चुकी है और लड़के अपने पादान पर, इस पादान पर गई है कि अच्छे पॉइंट्स ले चुके हैं वहाँ पर। और आज बारी ख्वाई की है, तो अब ख्वाई अपना वार जो है वो लड़ पाते कि नहीं, आज ये देखना है। क्योंकि हौसले नहीं हारा करते शेर कभी भी जंग मैदान में। तो आज ख्वाई सोचेगी कि वो एक लड़ाई लड़े और यहाँ पर अपनी टीम के लिए अच्छे खासे पॉइंट्स बनाए। और अच्छे पासेस ये चाहिए, ये बड़े पासे चाहिए। देखिए चेस्ट पे किस तरह से बॉल को हैंडल किया गया, लेकिन यहाँ पर अच्छा डिफेंस, वहां पर कॉर्नर मिलेगा ख्वाई को। तो काम पे लगाना है आपको, हर एक फैसला, हर एक रणनीति यहाँ पर जरूरी आपके लिए, क्योंकि अगर परिस्थितियों का सामना करना है, जिस परिस्थिति पे आप है, तो उस परिस्थितियों में आप करवट बदलिए और अपनी सोच बदलिए, नहीं तो ये मुकाम आपको हासिल होने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं, अच्छा थ्रो जी नहीं, वो थ्रो होगा, थ्रो इन है ख्वाई का। अच्छा थ्रो एकदम गोल पोस्ट के पास, चेयर से रोका। देखते हैं क्या करते हैं। 78 नंबर के जर्सी ने अच्छी यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन नहीं, मौका नहीं। लंबा केक यहाँ पर, जी नहीं, मौका नहीं। गोल पोस्ट के ऊपर की तरफ से पहुंची नहीं जगह पर, ठीक तरह से निशाना बैठा नहीं पैरों से। यहाँ पर अच्छी कोशिश फिर से, देखिए किस तरह से रोका जा रहा है गेंद को। और गोमती की रफ्तार वही है, धार भी वही है, और इस धार को अगर रोकना है, देखिए जरा सी चूक हो जाती ना तो बंदा मुश्किल में आ जाता है। फिर आपको सोच का सबब नहीं बनना है, और सोच ऐसी बना के रखिए कि यहां पर चेंजेस। गोमती का 23 आउट, 10 नंबर इन।
गोमती के जो 10 नंबर के खिलाड़ी हैं जॉन, वो अंदर जाएंगे अभी। उन पर भरोसा दिखाया उनके कोच ने कि जाइए, कुछ हो सके तो कर दीजिए, वो मुकाम जो हमने हासिल किया है अब तक उस मुकाम को बरकरार रखिए। बड़ी कोशिश यहाँ पर देखते हुए कि अपनी टीम कहाँ मौजूद है। बहुत अच्छी गोलकीपर की चालाकी, वो बता रहे कि इस तरह मौजूद है, मैं एक लंबा किक दूंगा। जी बिल्कुल, वहां पर सेंटर क्रॉस किक था वो। कुछ मझधार में नहीं फंसना चाहिए आज खोआई को, अपनी टीम के लिए एक अच्छी चुनौती का सामना करते हुए, क्योंकि गोमती अच्छी लड़ाई लड़ी है अब तक। मिल्टन जी, ये जो लड़ाई है आज ये किस जगह पे जाएगी और क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि कौन किसका पलड़ा आज भारी हो सकता है? Yes, actually, you know, the Gomoti Gladiators have been doing really great in the previous games as well. But, you know, the Khwai Warriors really need to work harder this time. And I think that they have come up really strong this time because most of the ball have been in the hands of the Khwai Warriors today. And they have been getting so much of opportunities but missed out a few of them. They really need to, you know, work better and have a better communication between the players and make their first goal, so that, you know, this time that they shouldn't be losing the point, because in the previous matches that we have seen from the part of the Khwai Warriors wasn't that satisfactory, and today it seems like, you know, they are doing really well, and the balls are always in the hand. They have been pushing always towards the goal post, and they have been getting the maximum opportunity thus far. It's been about 17 minutes now, and they're doing great today. And looking into the weather condition, I think they should be able to, you know, they should be able to make the score. But what an unfortunate, or as you can say, that this is an unlucky shot by the Gomoti Gladiators. They would have had the first score, but you know, there were no players in the box, and they lost and missed the opportunity at this point of time. Maybe they also need to look into the players and pass the ball properly, so that, you know, they can have a better strategy to make their first score in the first half as well. फिलहाल मिल्टन जी, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि यहाँ गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा अच्छा स्ट्रेटेजी दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो 10 इन हुए हैं जर्सी नंबर 10, वो है जॉन जमातिया। एंड जॉन जमातिया जी, आप सब जानते हैं, जॉन जमातिया जी ने पिछले एक मैच में जो कि नॉर्थ पैंथर्स के साथ था, तो उसमें उन्होंने एक गोल किया था। साथ ही साथ आप आज देख रहे हैं सोखई बम जो बेहतरीन कर रहे हैं आज भी। साथ ही साथ उस दिन भी जो 2 मैच हुए थे, उनमें भी दोनों मैचों में एक एक गोल उनके द्वारा लिया गया था। तो आज देखना ये है कि वॉरियर्स कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, क्योंकि वॉरियर्स मैं देख पा रही हूँ बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत बेहतरीन पासेस, पर थोड़ा टीम वर्क जो कि पिछले बार भी थोड़ा हमने नहीं देखा था, आज वो टीम वर्क चाहिए वॉरियर्स के द्वारा। वो टीम वर्क अगर आज आप नहीं दिखाएंगे तो शायद आपके ऊपर आज का ये पूरा टूर्नामेंट भारी पड़ सकता है, क्योंकि 2 मैचेस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और ये आपका तीसरा मैच है, और दोनों मैच में ही आपका स्कोर 0 था। तो अब आपको एनी हाउ करना है, एनी हाउ आपको गोल लेना ही है, जीतना ही है, ये जज्बा होना चाहिए कि करना ही है। और उनके द्वारा हम देख पा रहे हैं कि आज उनकी मेहनत दिख रही है, पर वही बात है, मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सोचना भी है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, अपनी टीम वर्क को भी देखना है। ये सभी के साथ ही फुटबॉल होता है। फुटबॉल सिर्फ पैरों का खेल नहीं है, सिर्फ गेंद का खेल नहीं है, यहाँ सब कुछ सोचना पड़ता है। यहाँ इवन टीम वर्क बहुत मैटर करता है, जो हम देख पा रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स में। क्यों मिथुन जी? सौरभिता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि खुआई को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि खुआई जो है वो काफी प्रबल दावेदार थी। इस ऐसा परफॉर्मेंस देखिए, अभी जो पासेस था, एक अच्छा पास था यहाँ पर जो शायद कामयाब नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा पास था। वो उसको आप अंक तालिका में 100 में से 100 देंगे। चांसेस उनके पास बनेंगे, मिलेंगे। खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उसके पास बॉयर डबरमा है, रोनाल्डो है, साइमन है, तो ऐसे प्लेयर हैं इनके पास जो इस खेल का पलड़ा को कभी भी घुमा सकते हैं। इसका एंगल कब बदल जाएगा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि इतने दावेदार है। ये टीम इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे मैच खेले हैं
और बहुत उसके अंदर वो एक्सपीरियंस है, इतना अगर ज्यादा आप खेल चुके हैं, भले हारी हो, भले आप हार चुके हो, लेकिन इतना मैच खेले हैं तो आपके अंदर कुछ तो आए होंगे वो गुण। ये सहमत होंगी शायद। जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। तो कोई मैं असहमति दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने 2 मैच में जो जज्बा उन्होंने दिखाया था, दैट वाज गुड, दैट वाज अमेजिंग। पर वही बात है मिथुन जी कि हमें उस 2 मैच को 2 मैच के एक्सपीरियंस को काम में लगाना है। अगर हम काम में नहीं लगाएंगे तो शायद वो फिर आज का भी मैच हाथ से निकल जाएगा। और वो भी फर्स्ट हाफ में अगर आपका 1 गोल हो जा रहा है, जो कि यहाँ आपने पासेस देखे एकदम हमारे वॉरियर्स के द्वारा जो पासेस थे बेहतरीन थे, पर वही बात है थोड़ी चूक के कारण शायद 1 गोल नहीं हो पाया। और आज अगर उनका गोल हुआ तो टूर्नामेंट का पहला गोल होगा उनकी टीम का। तो मैं चाहती हूं कि उनकी तरफ से एक बेहतरीन गोल, और यहाँ एक गोल, क्या बात, गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा पहला गोल। मिथुन जी क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैंने कहा था थोड़ा डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वॉरियर्स को। अगर उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, और वो प्रेशर अब आ गया। सौरमिता, कोई प्रेशर वैशर नहीं। मिल्टन भाई भी मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरह का खेल हो रहा है ना, शुरुआत है बिल्कुल। ख्वाय जो अपना वार जो है यहाँ से आज कुछ ना कुछ तो करके जाएगी। मिल्टन, मैं तो ये बोल रहा था कि जो गोमती ग्लेडिएटर्स है, इन लोगों का जो खेलने का तरीका है, it's really awesome to see the way they play the game, because even in the previous match the Gomoty Gladiators have scored really well and won with the West Royals in the previous match, which was played in the Killer Mini Stadium. And so again today they have been showcasing such a wonderful match, such a sportsmanship, and it looks really awesome to see them playing such a beautiful game. They have been playing really small passes. They've been playing really small passes and nicely tackled down, and the way the Gomoty Gladiators have been doing and performing from the previous matches as well. It's really good to see the way they deal with with the kind of strategy that they have already set from the beginning. And the coach here is Tapan Kumar Jamatia, who's been leading the team and have been training them so well. It is needless to say that they really have a very good coach, and also their team manager as Subhas Pravat Jamatia. So it's really nice that the team coach and also the manager have been really working hard to bring them to this kind of a platform. And as you know, Mithun, most of the players in Tripura, basically in the field of football, most of the players come from Gomoti area, the Jamatias, so to say, and there are more in the northern part of the state, Tripura. So it's really nice to see the way they play, the tackle between the players, and the teamwork is really awesome to see. And so I think it is also to see that how the Kwai Warriors will make the first score, if they are able to make the first score in the first half. This is the most important and the most easy way to win the match, or at least bring the match to a draw. बिल्कुल मिल्टन जी। अभी देखिए, बात यह है कि आपने कहा कि गोमती के उधर से ही जितने प्लेयर हैं, जिसे आपने जमातियों का उल्लेखनीय यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है, तो मेरा ये मानना है हम किल्ला गए थे और वहाँ पर मेरे को ये मालूम चला कि जो फुटबॉल है उसका जन्म जो है वहाँ पर, और उस खेल का जो वहाँ पर प्रदर्शन था, जमातिया जो आप बात कर रहे थे फिर किल्ला में, तो वहाँ पर वो फैन फॉलोइंग भी लगा मुझे। हाँ, खेल का जो शुरुआत का जो रूट्स है वो वही है, और वो जैसे इंग्लैंड जहाँ से वो खेल शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड पे छा गया, तो त्रिपुरा वह खेल एक जगह से शुरू हुआ पूरे त्रिपुरा पे छा गया, और उसका पूरा जो मैं कहूँगा श्रेय जाता है वो TTAADC को जाता है, क्योंकि उन्होंने वो हीरो को खोज के निकाला है खादान से। Absolutely. Here it is awesome to see the kind of match that's been showcased in Komalung here today. The Komalung Stadium, even if it is empty at this point of time, the
semi-finals, both the semi-finals and the finals, is going to be really filled the gallery today because there's been not much of an advertisement for the people to know. But yes, it is needless to say that Kumuling Stadium really becomes packed up when it comes to the semi-finals and the finals. Assistant referee, Megan Vijayanathan as the first assistant referee, And Sushil Devarma as the table referee today. And it's really awesome to see them in the field, such energetic men in the field at their job. सो मिल्टन जी एंड मिथुन जी, यहाँ कुछ अलग मैच दिख रहा है की तरफ से। गोमती ग्लेडिएटर्स का यूं तो पहले से ही पलड़ा भारी था, अब वो और भारी कर रहे हैं क्योंकि अब लग रहा है कि उनको देखकर लग रहा है कि उनका पूरा जज्बा है कि वो सेमीफाइनल तक जा ही पाएंगे। वहीं अगर मैं खोवाई वॉरियर्स को देखूं, खोवाई वॉरियर्स की मेहनत को दाद देने पड़ेगी। मतलब मैं जब खोवाई वॉरियर्स से कुछ प्लेयर्स को देखती हूँ, जैसे प्लेयर नंबर 20 जोएल जी काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग प्लेयर्स पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि उनकी तरफ से एक अच्छा खेल मिले, एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन मिले, पर वही उनकी तरफ से थोड़ा और उनको हार्डवर्क करना ही है। अगर वो हार्डवर्क उनकी तरफ से नहीं दिखा आज, तो शायद ये गेम भी उनके हाथ से चला जाएगा। जैसा कि मिथुन जी ने कहा था कि आज उनको पूरा भरोसा है वॉरियर्स पर, हमें भी पूरा भरोसा है वॉरियर्स पे, हमारे खोवाई वॉरियर्स पे, क्योंकि आज हम एक अलग रूप देख पा रहे हैं, उनके अंदर एक अलग फायर देख पा रहे हैं, पर उसको उनको काम में लगाना है और वो भी सही काम में लगाना है। अगर एग्रेसिव आप हैं तो आप पॉइंट देखकर, टारगेट देखकर अपनी एग्रेसिवनेस शो कीजिए, बट डायरेक्टली आप अगर वो चीज़ को कर रहे हैं, सोच रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, अपने प्लेयर के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तब शायद वो हाथ से चला जाएगा। तो वो आज हमें देखना है वॉरियर्स का, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आज खोवाई वॉरियर्स अपना एटलीस्ट पहला गोल तो करे, अपना टूर्नामेंट का पहला गोल तो डेफिनेटली करे। सौरभ, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से ये गोमती जिस तरह से पासेस खेल रही है, अगर इस पासेस को रोका नहीं गया तो खोवाई के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ध्यान रखें और कोच के जहन में भी बात आना चाहिए कि अब जो है आपको कुछ दिमाग में ऐसी बातें लानी है जो इस गेम को मतलब कहीं मोड़ दे सके, नहीं तो मुश्किलों का सामना आपके आगे लिए खड़ा है आपके लिए। और वो भी फर्स्ट हाफ में अगर होगा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी मिथुन जी। अगर फर्स्ट हाफ में हमें हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स का ऑलरेडी एक स्कोर हो चुका है, वहीं अगर दूसरा स्कोर उन्होंने कर लिया तो एक बहुत बहुत बेहतरीन प्रेशर उनको मिल जाएगा हमारे वॉरियर्स को। वो प्रेशर शायद सेकेंड हाफ में उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। मिल्टन जी क्या कहना है? And nice shot by the defender from the by the Gomati Gladiators there. And I think this can be a dangerous shot over there. And lucky save by the defender from the part of the Kauai Warriors. Kauai Warriors, I'm sure they will be showcasing their energy a little later. I hope so, because right now they want the Gomati Gladiators to run out or drain out the energy, and probably they will be shooting their shots in the later period of this game, and so probably this is the kind of a strategy that they're playing, and this could be a foul kick. Yes, and there goes the referee, and so the kind of match both the team playing today is really good to see, and such a wonderful match being shown here live from the Komalang Stadium.
मिल्टन जी यहाँ अभी डी बॉक्स से जिस तरह से वॉरियर हमारे प्लेयर ने हमारे खुआई वॉरियर के प्लेयर ने जिस तरह से बॉल को पास किया था वो डेफिनेटली उनकी टीम को ही दिया था, पर वही जो मैंने कहा थोड़ा टीम वर्क को करना है, शो करना है यहाँ। उनका डिफेंस नो डाउट इट्स वंडरफुल, पर उनके डिफेंस के साथ अभी उनको अटैकिंग भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि पहले हाफ में ऑलरेडी एक गोल एक स्कोर कर दिया है गोमती ग्लेडिएटर्स ने, और अब अगर उनकी तरफ से ये अटैकिंग पोजीशन ना रहे, एक गोल ना बने तो टाई नहीं हो पाएगा। और यहाँ एक डेंजरस शॉट है and it's what a save, what a save, amazing, what a save, गोमती ग्लेडिएटर्स, वाओ क्या बात। एंड यहाँ हमारे वॉरियर्स खोआई वॉरियर के जो गोलकीपर हैं मस्त से क्या बात और क्या बात, क्यों मिल्टन जी? Yes, and it is really nice to see the way they were passing the ball and heading the ball into the box. But you know what a save, and lucky it is for the team of Kauai Warriors, because the ball hit the goal post on the top of the goal post and somehow saved the goal today. And this could have been a goal for the Gomati Gladiators, and this would have made a really heavy pressure on the part of the Kauai Warriors. And again, it's the same kind of a shot being played over there, and that's the kind of tournament that should be showcasing what a sportsmanship over here, as we are seeing from this match today at the Komaling Stadium. And since this is the 10th match, the players are already experienced and they know what to do where and at what point of time they should be changing their strategy. The teamwork between the Gomati Gladiators really showcasing the lovely performance and also true sportsmanship today. And you see the way they pass the ball, back pass and front pass, a long shots as well. And they've been getting almost all the opportunities now after the after at least 20 minutes pass, and now it is 31 minutes. It's going to be 32 minutes, and there's only another 14 to 15 minutes more before the halftime. So I think this should be an opportunity for the Kauai Warriors that they make the first score and also keep up with the spirit of the sportsmanship today. यहाँ मैं आधा मैच जो देख रही हूँ उसमें सिर्फ यही देख रही हूँ कि हमारी यहाँ वॉरियर्स की डिफेंस काफी स्ट्रांग है, पर आधे जो प्लेयर्स हैं वो अपने ही साइड में ही हैं, और इसी कारणवश शायद उनका जो गोल है वो नहीं हो पा रहा है। उनको थोड़ा और मेहनत दिखाना है, थोड़ा और हार्डवर्क करना है, और थोड़ा ट्राई करना है कि इस साइड में जो उनके साइड में वो गोल करने की तरफ जाए, क्योंकि जहां जितना मैं देख पा रही हूँ हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स टोटली ट्राई कर रहे हैं कि ये मैदान के बीचों बीच से वो जो बॉल है वो उन्हीं के साइड रहे और उन्हीं की तरफ से गोल हो, वो इस साइड में जा ही नहीं पा रहा है वो बॉल। क्यों मिथुन जी? सोरुमिता देखिए जिस तरह से पासेस खेल रहे हैं ना गोमती, उसको देखिए इतना लंबा शॉट था वो डी बॉक्स के बाहर से, आप कह सकते हैं कि वो लेफ्ट विंग के साइड से शॉट था वो, और एकदम इस तरह से शॉट था कि वो सिर्फ खंबे से मान लीजिए 2-3 सेंटीमीटर की दूरी बची थी। अगर जरा सी चूक हो जाती ना इधर उधर तो 2 आ जाते गोमती के खाते पे। लेकिन गोमती जिस तरह से पासेस खेल रही है ना, उसका प्रदर्शन एकदम उम्दा प्रदर्शन था उनका आज। लेकिन उसके लिए उसको फाइट करना पड़ेगा खुआई को, क्योंकि खुआई जो है बहुत देर से अपने ही गोल पोस्ट पे बैठी हुई है, क्योंकि इसको उस पार जाना है। क्योंकि आप अगर अपने गोल पोस्ट के पास ही इर्द गिर्द बचाने के चक्कर में रह जाना है तो आपके कई गोल चूक जाएंगे, क्योंकि आप अपना डी बॉक्स को ही नहीं छोड़ पा रहे। आपका डिफेंस, आपका स्ट्राइकर, हर कोई अगर गोल पोस्ट के पास ही बैठे रहेंगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि गोमती को देखिए जिस तरह से पूरे लेफ्ट विंग, राइट विंग, फिर डिफेंस, हर चीज एकदम कह सकते बारीकी से जो होती है ना फुटबॉल की बारीकियां, वो सारी बारीकियां अपने अंदर समा के आई है आज। और इस तरह के प्रदर्शन वो एकदम उम्दा, एकदम प्रशंसा के काबिल, जो भी दर्शक जो जहां से देख रहे हैं। मिल्टन जी, एक बात यह है कि आज अगर खुआई वॉरियर्स को अपना
जलवा चमकाना है तो क्या करना है इनको? क्या आप क्या परामर्श देंगे कि भाई ऐसा करो या फिर कोच से बात करो, क्या बोलेंगे आप? You see, like the match that's been showcased yesterday, I think they quite and what a goal this time from the part of the Kwai Warriors. You see, as we were just talking about this, and you know the Kwai Warriors really came up with a very nice strategy, and player number 20. Player number 20 with jersey number 20, Jewel, has made his first score for the part from the part of the Kauai Warriors today, and it's really nice to see the way he really trickily played the ball into the box and to the goal. And so it's really nice to see the way he played the ball. It is always good to support and pass the ball who really can make their first score or score the goal. And you know, I guess there were no defenders from the part of the Gomati Gladiators when Jewel was running into the field, and so and that's how he made his score today. तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जुएल जी में मुझे दम दिखता है। मैंने इतने देर से नोटिस किया जर्सी नंबर 20 जुएल जी तब से ट्राई कर रहे थे फॉर हिज लेवल बेस्ट, पर थोड़े टीम वर्क के कारण शायद वो नहीं हो पा रहा था, जो अब हो गया। यहाँ पहला गोल खोआई वॉरियर्स का, इस पूरे टूर्नामेंट का पहला गोल उन्होंने किया है और अब है टाई। अब तो यही देखना है कि कौन आगे जा पाएगा, कौन एक बढ़ोतरी ले पाएगा ताकि उनका पलड़ा भारी रहे और आज का ये जो गेम है, ये जो मैच है, वो जीत सके। तो यहाँ खोआई वॉरियर्स अब बेहतरीन कर रहे हैं लंबे शॉट्स। वही बात है, थोड़ा टीम वर्क उनको दिखाना है, उनके जो स्ट्राइकर है, उनके जो मिडफील्डर है जितने हैं, उनको थोड़ा जज्बा दिखाना है, थोड़े सामने तक जाना है ताकि उनकी तरफ से गोल रहे। और वही गोमती ग्लेडिएटर्स को अगर हम देखें तो उनका स्ट्रेटेजी माशाल्लाह क्या बात, आज उनका जो पासिंग मैं देख पा रही हूँ दैट्स सुपर्ब, अमेजिंग। बट वही बात है, वो चीज रखना है, वो चीज बरकरार रखनी है। गोमती ग्लेडिएटर्स का यहाँ गोल की, यहाँ आप एक रिप्ले देख पाएंगे। जो जैसा कि मैंने कहा, गोमती ग्लेडिएटर्स के गोलकीपर को थोड़ा सजग रहना है। जो सजगता हमारे खोआई वॉरियर दिखा रहे हैं, खोआई वॉरियर के गोलकीपर दिखा रहे हैं, वो सजगता शोकेस होनी चाहिए गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा, क्योंकि तभी वो एक गोल हो पाया था। देखिए जिस तरह से अभी का जो हालात बना हुआ है ना, उसमें एक की बराबरी। अभी खोआई को चांसेस नहीं देने, अभी खोआई को चांसेस लेने हैं। वो जितना अपना डिफेंस अच्छा कर लेंगे, जितना स्ट्राइक को अपना बढ़ावा देंगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो उससे खेल जो है अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा। और आप में वो जो आपका जो हाफ टाइम होगा ना, उसमें भी आप उससे बात कर सकते हैं कि आगे का जो रणनीति हो किस तरह से हम लोग ले सके। सौरमिता, बाकी की जानकारी आप दीजिए कि अब तक आपने शुरुआत से इन टीम को देखा है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि क्या होगा आज? शुरुआती दौर पे तो जब खोआई वॉरियर्स का अगर मैं बात करूं तो खोआई वॉरियर्स आज जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आई गेस इतने टूर्नामेंट के इस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं मस्त से, तभी उनका एक बेहतरीन गोल हो पाया है। वहीं खोआई वॉरियर्स ने सबसे पहला मैच जो खेला था वो खेला था बाईजलबारी स्टेडियम में, एंड बाईजलबारी स्टेडियम में उनका जो सामना हुआ था वो हुआ था वेस्ट रॉयल के साथ। यहाँ भी एक डेंजरस मोड था जहाँ खोआई वॉरियर्स थोड़े प्रेशर में पड़ सकते थे अगर एक गोल हो जाता तो अभी गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा, पर वो नहीं हो पाया। वही मैं बार बार जो चीज रिपीट कर रही हूँ, खोआई वॉरियर्स को अभी सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है, उनके जो टीम प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको थोड़ा सेफली, उनको थोड़ा सा सोचकर अपने अपने पोजीशंस लेने चाहिए। तो जैसा कि कहा था, खोआई वॉरियर्स ने अपने पहले मैच में बेहतरीन किया था, पर तब शायद उनको समझने में समय लगा था कि हाँ किस तरह से मैच को एक अलग रूप देना है। वही खोआई वॉरियर्स का जो नेक्स्ट मैच हुआ था, उन्होंने
अच्छी मेहनत की थी, पर शायद वो काम नहीं आई, शायद वो रंग नहीं लाई। आज का जो मैच है इसमें डेफिनेटली हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि आज का जो मैच है वो एक डिफरेंट रूप ले रहा है, क्योंकि खोवाई वॉरियर्स आज एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि आज का ये जो मैच है वो उनके लिए एक कह सकते हैं चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। वहीं गोमती ग्लेडिएटर्स हमेशा की तरह आज भी बेहतरीन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बॉल बार बार वो चाहते हैं कि उनके गोल पोस्ट के आसपास ही रहे और किसी ना किसी तरह से बस गोल हो जाए। आपने देखा था गोमती ग्लेडिएटर्स को पहले मैच में जब नॉर्थ पैंथर्स के साथ उनका हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में 5 गोल उन्होंने ही बनाए थे, उन्होंने ही दर्ज किए थे। वही गोमती ग्लेडिएटर्स का जब नेक्स्ट मैच हुआ था किल्ला में, तो किल्ला के ग्राउंड के हिसाब से हमें लगा था कि शायद कुछ अनबन हो सकती है, पर गोमती ग्लेडिएटर्स ने बेहतरीन किया और 3-0 से अपना जीत हासिल किया। और आज ओके एक और गोल हो सकता था खोवाई के द्वारा, पर वही बात थोड़ी सी चूक। अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से आता है मिथुन जी, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना स्पेशली खोवाई के लिए शायद आज के दिन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है। क्यों? देखिए अभी हाफ टाइम हो गया शायद, और इसमें अब जरूरत है रणनीति की, क्योंकि 1-1 की बराबरी है दोनों टीमें। गोमती अच्छे पोजीशंस पे है, अच्छी जगह पे है। खोवाई को लड़ाई लड़नी है, पॉइंट्स कमाने हैं, क्योंकि खोवाई वॉरियर्स कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि खोवाई में वो काबिलियत है, वो दम है कि खोवाई ऐसा कर सकती है। तो अब हम थोड़े अंतराल के लिए जाते हैं। आप सभी का जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे TTADC को, जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का, एवं संस्कृति और खेल को एक ही मैदान में दर्शाना सच में बहुत अनोखी बात है। हेलो चेक। तो यहाँ अंतराल में एक बार फिर से हमारे साथ रहेंगे खोवाई वॉरियर्स एवं गोमती ग्लेडिएटर्स। इसके बाद अब देखना ये है कि सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है, क्योंकि अब है 1-1। अब जिसके द्वारा पहला गोल दर्ज किया जाएगा सेकेंड हाफ में, वही शायद एक चांस ले सकता है जीतने का। तो वो देखना है अब हमें। यहाँ जैसा कि हमने कहा था, धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को इतने खूबसूरत एक इनिशिएटिव के लिए, संस्कृति और खेल को एक ही मैदान में दर्शाना। वी आर हैविंग विद अस अमेजिंग सिंगर्स, जिनके द्वारा एक संगीत प्रस्तुति रहेगी। इसके बाद चलेंगे हमारे सेकेंड हाफ की ओर।
धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सिंगर्स को, काफ़ी खूबसूरत प्रस्तुति। एवं अब जाएंगे हम सेकेंड हाफ की ओर। जैसे कि हमने कहा था कि सेकेंड हाफ में अब देखना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम के जो स्कोर है वो है 1-1 और दोनों ही टीम अभी चाहेगी कि एक प्रेशर दूसरे टीम की तरफ वो दे दे। अगर हम खोवाई वॉरियर्स की बात करें तो आज काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है खोवाई वॉरियर्स। आज उनका इस टूर्नामेंट का पहला स्कोर भी था, तो डेफिनेटली आज एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ वह आए हैं, अलग जोश के साथ वह आए हैं। और जैसा एकदम पहले कहा था मैंने कि आज फायर के साथ हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स, साथ ही साथ हमारे खोवाई वॉरियर्स हैं। पर खोवाई वॉरियर्स में आज एक अलग जोश में देख पा रही हूँ, वहीं गोमती ग्लेडिएटर्स आज भी चुप नहीं है, हमेशा की तरह आज भी एक अलग जज्बा है उनका। एंड मिथुन जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज हमारे दोनों ही टीम काफी कह सकते हैं एनर्जेटिक है, काफी स्ट्रेटेजी के साथ लग रहे हैं। और दोनों ही टीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज है वो जज्बा कि आज हम कर दिखाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या क्या होगा आज? मैं तो काफी डरी हुई हूँ क्योंकि दोनों टीम का ही 1-1 है। हमारे पास नॉर्मली एक रहता है कि फर्स्ट हाफ में अगर किसी का ज्यादा स्कोर हो जाए तो हम कहते हैं कि अरे उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। पर अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट में दोनों ही टीम का रहेगा कि या तो हम एक गोल कर ले या गोल करने ना दे। दोनों ही टीम का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक गोल करने दिया मतलब आप अपने आप को नीचे कर ले रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस, अपना कॉन्फिडेंस डाउन करवा दे रहे हैं। वहीं अगर एक गोल हो गया तो एक कॉन्फिडेंस अप हो जाता है कि हो जाएगा। क्यों? सौरमिता देखिए इस वक्त तो मोटिवेशन जो है ना उनका हाई रहना चाहिए खोआएगा, क्योंकि कल का मैच आपने देखा हाफ टाइम के बाद वक्त बदल गए, हालात बदल गए, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया था वेस्ट विकिंग्स ने। और वही अगर आज खोआई कर देती है तो बामसलन इनका जो नंबर पॉइंट है ना उसमें तो आएगी, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कि अपनी टीम को इस जगह ले जाए कि जहां पर ना बचेगी बांस और ना बचेगी बांसुरी। मतलब एक करो और मरो का सिचुएशन है। क्यों? जी बिल्कुल, एकदम वही सिचुएशन है इनके लिए, डू और डाई का। आज अगर ये कर जाते हैं तो एक बात यह है खोवाई वॉरियर्स अपना नाम कर जाएगी इस मैदान पर। और हाँ, जैसा खेल और लड़ रही है वो लड़ाई आखिर तक जारी रहनी चाहिए, तो फिर आप गोमती को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि गोमती के पास भी वो बेहतरीन सारी चीजें हैं, सारी स्किल्स हैं। आपने देखा है, पासेस देखे हैं उनके, जो हिडन पासेस थे, बैक पासेस थे, कितने सुंदर तरीके से ड्रिल करके बॉल को आगे ले जाते हैं। और ज्यादातर वो खोआई के पोस्ट के पास ही रहते हैं, डी बॉक्स के अंदर, तो आपको वहां रोकना है उनको। अभी ये पासा पलट दीजिए, आप चले जाइए उस तरफ, और उस तरफ जाके अपना जो सारा ताकत है आप उनके गोल पोस्ट की तरफ दिखाइए, और जाइए अपने लेफ्ट विंग, राइट विंग, अपने डिफेंस और अपने स्ट्राइकर सबको बोलिए। कोच को भी ये बात ध्यान में लेना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि अब इस चीज को टाइट करो। तो हाँ, ये बात तो एकदम सही कही है आपने कि इतने दिनों में मैंने एक चीज नोटिस किया, खोवाई वॉरियर्स को पहला वाला जो स्टेडियम मिला था वो था बाईजलबारी स्टेडियम। सेकंड जो स्टेडियम मिला था वो है 82 माइल्स वाला जो हमारा स्टेडियम था। तो दोनों ही स्टेडियम कुछ इतने खास नहीं थे। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है त्रिपुरा का, तो यहाँ डेफिनेटली एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे खोवाई वॉरियर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टेडियम अमेजिंग है। और इस स्टेडियम में जो इंजरीज है वो तो लगभग ना के बराबर होती, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन स्टेडियम है, अच्छे से मेंटेन किया गया है और त्रिपुरा का बेस्ट स्टेडियम में से एक है। तो ये स्टेडियम, इस स्टेडियम का भरपूर उपयोग आपको करना है, सही उपयोग आपको करना है, जो खोवाई को पहले तो मैचेस में नहीं मिला। एक स्टेडियम अच्छा, थोड़ा अच्छा स्टेडियम वो आज यहाँ मिला है, तो इस स्टेडियम को तो डेफिनेटली उनको सही तरह से यूज करना चाहिए। सही कहा ना मिथुन जी? देखिए जिस तरह से अभी तक इनको मैदान मिले हैं, वो देखिए मैदान जैसा भी, आप अगर मैदान की बात करेंगे सुंदरता तो है, ये 100 में से 100% जाता है इस मैदान को, कुमलुंग के इस मैदान को, जो सब जानते हैं कुमलुंग का जो ये अपरम दृश्य है, चारों तरफ की हरियाली, उस दृश्य भी आपके आंखों को एक अजीब सी सुकून देगी, क्योंकि हरा रंग ना भाई ऐसी कोई चीज नहीं। तो ये हरा रंग तो आपको दिखेगा यहाँ पर, और मैदान भी देखिए साफ, एकदम सपाट, सुंदर, विजुअल्स काफी सुंदर। तो आपको इसका फायदा, अभी आपको करना क्या है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव लाने हैं, सारी गलतियों को भुला दीजिए आप खोवाई वॉरियर्स, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है अभी, मान लीजिए, और आपको कुछ बहुत कुछ पाना है। और जहां कुछ नहीं और बहुत कुछ का फासला आ जाता है ना, उस फासले को तय करने में अगर सोच अच्छी रही ना तो कुछ समय ही लगेंगे, लेकिन तय जरूर होगी। मंजिल मुश्किल नहीं है अगर उड़ान अच्छी हो तो। सौरमिता आप क्या कहेंगे इस बारे में?
सच में मंजिल मुश्किल नहीं है अगर उड़ान अच्छी हो तो, और इस पर्टिकुलर मैदान में जरूर मंजिल मुश्किल नहीं है, गोल मुश्किल नहीं है अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा हो तो। अगर आप वो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, अगर आप वो भरपूर परिश्रम लगा रहे हैं तो क्यों नहीं होगा वो गोल, डेफिनेटली होगा। ये आज प्रूव कर दिया है खोवाई वॉरियर्स ने। बेहतरीन जबरदस्त आज परफॉर्मेंस खोवाई वॉरियर्स की। एंड इस खूबसूरत से दिन में आप सभी का फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप सभी को जो हमें लाइव देख रहे हैं, TTAADC को धन्यवाद देना चाहते हैं इतना बेहतरीन इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि इसी कारणवश जो फुटबॉल लवर्स है, फुटबॉल फैंस हैं, जो ऑफलाइन हमें हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, वो ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू वंस अगेन टू द ऑडियंस, थैंक यू दर्शकगण, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, फुटबॉल को इतना प्यार देने के लिए। और क्योंकि फुटबॉल आज यहाँ हो रहा है, ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली आगे जाकर, जरूर आगे जाकर फुटबॉल और आगे जाएगा, प्लेयर्स और आगे जाएंगे और नेशनली इंटरनेशनली हमारे त्रिपुरा को शो करेंगे। यहाँ अभी मैं देख पा रही हूँ खोवाई वॉरियर्स टोटली रेडी हैं, फुल्ली रेडी हैं अपने अपने पोजीशंस के साथ। एंड गोमती ग्लेडिएटर्स अभी भी सोच रहे हैं कि अरे ये करना है, ये करना है, इस तरह से करना है। तो डेफिनेटली अब देखने वाली बात ये है कि सेकेंड हाफ में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। मैं अब भी डर रही हूँ मिथुन जी, क्योंकि डरने वाली बात यहाँ ये है कि गोमती ग्लेडिएटर्स यूं तो हमने 2 मैचों में देखा था बेहतरीन कर रहे थे, तो उनकी तरफ से एक रहेगा अभी एग्रेसिवनेस मोड की करना ही है, लेकर ही जाना है। आज का भी ये जो मैच है वो लेकर जाना है। वही खोवाई वॉरियर्स को अगर आप देखें तो अभी जिस हिसाब से वो पोजीशन लेकर खड़े हैं, मतलब दे आर टोटली रेडी कि आज का ये मैच उनको जीतना है एनी हाउ, क्योंकि उनका फर्स्ट गोल हुआ है तो उनको ये मैच हारना नहीं है किसी भी तरह से। तो यहाँ हमारा सेकेंड हाफ शुरू होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ हम दर्शकगण देख पा रहे हैं खुमलुंग स्टेडियम में हमारे दर्शकगण भी अपने अपने टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी के मुख पर एक टेंशन है, कह सकते हैं सभी के फेसेस पर एक टेंशन है कि कौन जीतेगा, कौन अभी इस सेकेंड हाफ में पहला गोल लेगा। देखिए सारी फैसला अब कैप्टन जो है ना रोनाल्डो वर्मा, उसको रणनीति लेनी होगी। अब कोच के साथ जो भी बातें इनकी हुई हैं, तो उन रणनीतियों को एक तरफ रख के आप सूझबूझ के साथ अभी फुटबॉल खेलिए। ध्यान दीजिए कि इस खेल को आप उस प्रदर्शन पे ले जाए जहां पर अपनी टीम के लिए अच्छा हो। अच्छी पासेस देखिए, गोमती अपने टो हिल पे लगा के बॉल को किस तरह से पीछे बैक फ्लिप कर दिए, और यहाँ पर आगे तो गोमती के प्लेयर्स देखिए 16 नंबर के जर्सी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कॉर्नर की तरफ चले गई है गेंद, और यहाँ पर अच्छी पास, हल्की सी पास, अच्छा लॉन्ग देने की कोशिश, लेकिन वहां पर ख्वाई मौजूद, लेकिन लंबा फिर से यहाँ पर कोशिश थी कि वहां पर 17 नंबर के जर्सी ख्वाई को दे जाए पास, लेकिन वहां पर भी नाकाम। फिर ख्वाई के पास, और यहाँ पर हल्की सी चूक हो गई थी। चलिए, बहुत उछली ऊपर गेंद, इतनी ऊपर कि हेडर बनी यहाँ पर। अच्छी पास फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा बॉल को ले जाते हुए गोमती, एक लंबा पास बीच से घुस पाते नहीं थे, वहां गोलकीपर एकदम सजग। दोनों गोलकीपर की आज तारीफ बनती है, क्योंकि दोनों ने आज ऐसा प्राण निछावर कर दिया अपने टीम के लिए, क्योंकि ये पासेस अभी कितने पास ले जाती है ख्वाई को, ये देखना है। अच्छी पासेस, ठीक है, दीजिए अपनी टीम को और इस तरह से आगे बढ़िए। 32 नंबर के जर्सी बहुत देर रखे अपने पैरों पर गेंद को। ओबे जाने माने खिलाड़ी हैं, और अच्छे लेफ्ट विंग से ले जाते हुए गेंद को, देख किस तरह से, नहीं यहाँ पर आउट, बाहर चली गई है गेंद। थ्रो इन किसका है? जी हाँ, गोमती का। अच्छी थ्रो, यहाँ पर लंबा थ्रो। देखिए ध्यान से देखते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि कहाँ कौन कहाँ मौजूद है। ये स्ट्रेटजी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम प्लेयर्स कहाँ है, क्योंकि पास वही देना है, नहीं तो हल्की सी चूक या कुछ भी करते। देखिए ये ट्रिक अच्छी लगी, ओ चूक गए ले जाते जाते। फिर गोमती ने अच्छा डिफेंड किया, यहाँ पर बॉल सीमा रेखा से बाहर। जी हाँ, गोमती आज बेहतरीन अटैकिंग भी कर रही है और बेहतरीन डिफेंस भी दे रही है, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज खोवाई वॉरियर्स का परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। खोवाई वॉरियर्स आज एक अलग रूप में आए हैं, आई मस्ट से। और यहाँ देखिए एक लंबा शॉट, और यहाँ शायद एक हो सकता था एक गोल। वही बात है, थोड़ा सजग हमें रहना है, प्लेयर्स को भी थोड़ा सजग रहना है, और दाद देनी पड़ेगी हमारे गोलकीपर्स की। आज दोनों ही गोलकीपर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोनों ही गोलकीपर्स की तरफ से ट्राई है कि एक भी गोल ना हो। सो यहाँ फिर से हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स के पास बॉल
बॉल अभी जा रहा है उनकी तरफ से, और यहाँ मैंने कहा था आज मिथुन जी, आज डिफेंस काफी अच्छा है वॉरियर्स का। हमारे वॉरियर्स आर एक्चुअली वॉरियर्स बन के आए हैं, तो उनके पास तलवार नहीं है, वो कहते हैं वो सूट नहीं है, बट फिर भी आज वो वॉरियर बन के आए हैं। एक्चुअल में उनका जो डिफेंस है आज वो मानना पड़ेगा, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे प्लेयर्स को, उनके प्लेयर्स को वो रोक रहे हैं इतनी शानदार तरह से। और यहाँ फिर से हमारे गोलकीपर ने शो कर दिया है कि हाँ वो तैयार है गोल के लिए, उनके गोल को रोकने के लिए, जो कि कहा था हमने। आज दोनों ही गोलकीपर्स बहुत बेहतरीन कर रहे हैं एंड उनका डिफेंस, हमारे दोनों ही टीम का डिफेंस एंड अटैक काफी अमेजिंग जा रहा है। ये कल का गेम लग रहा है मुझे, मतलब कल का गेम में जैसे हमने कहा था ना कि दिन कभी भी रात हो सकती है, रात कभी भी दिन हो सकता है, वैसा वाला लग रहा है मुझे। कल जैसे एक बेहतरीन मैच हमने देखा था, फर्स्ट हाफ में एक एंड सेकंड हाफ में एक। आज मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में, जो कि मैंने कहा था तुम गोल करो भी मत और करने भी मत दो, मैं गोल नहीं करूंगी बट मैं करने भी नहीं दूंगी, ऐसा वाला है कि इस टीम ने कहा है कि हम गोल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम गोल करने भी नहीं देंगे, और वो अगर हो गया तो आज ये टाई जाएगा, 1-1 जाएगा। तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब ये सेकंड हाफ में क्या और हो सकता है। मिथुन जी क्या लगता है, किस तरह से वॉरियर्स क्या आगे जा पाएगी, या फिर ग्लेडिएटर्स अपने अटैकिंग सिस्टम से पहले चले जाएंगे? देखिए जिस तरह से गोमती अपना प्रदर्शन कर रही है ना, छोटे छोटे पासेस खेल रही है और आपस में अपनी टीम को जिस तरह से मोटिवेट करके आगे ले जा रही है ना, और पासेस देखिए ध्यान से, छोटे छोटे पासेस हो रहे हैं उनके, लेंथी पासेस नहीं खेलते, क्योंकि अगर ये छोटे पासेस आपको बहुत अच्छा एक वो मिलता है, आपको मौका मिलता है वहां पर गोल पोस्ट तक पहुंचने का, क्योंकि उनको मालूम है कि अपनी टीम जो है कहां कहां मौजूद है। यहाँ पर एक पहले अच्छा ख्वाई को एक मौका मिला था जहां पर वो शायद वो हेडर से वो गोल बन सकता था, लेकिन वो 17 नंबर के खिलाड़ी थे वहां पर जिन्होंने मतलब वहां पर चूक गए, क्योंकि उनको वो ड्रॉप जो था बॉल का हाइट ज्यादा आ गया था और वो आगे निकल गए थे और गोलकीपर आगे आ गया था। देखिए यहाँ पर गोमती किस तरह से ट्रिक करके आगे ले गए थे, पैरों से आगे ले जाती हुई, और ये 10 नंबर का जर्सी गोमती का देखिए पासेस देखिए आप, और यहाँ पर फिर से ख्वाई के पास देखते हैं। इस मौके को सौरमिता, इस मौके को फायदे में लेना चाहिए आपको। हर जितने आपके पास तरकश के बाण है ना, आपके पास जितने भी औजार हैं सब आज उड़ेल दीजिए इस मैदान पर। ख्वाई के लिए कह रहा हूं मैं, और आप कह रहे तलवार की बात वॉरियर्स के लिए, तो तलवार तो उनके पैरों में है आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आज देख पा रही हूँ कि एक्चुअली तलवार उनके पैरों पे है, और जितने हेडशॉट्स आज दे रहे हैं हमारे प्लेयर्स, दैट्स समथिंग, आई मीन वाओ। बहुत अच्छा गेम आज देखने को मिल रहा है, अच्छा मैच आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो वॉरियर्स है हमारे, जितने बार भी वॉरियर्स की तरफ से जो आप बोल रहे हैं ना, जो छोटे छोटे पासेस हमारे खोआई वॉरियर्स दे रहे हैं, आपने अगर नोटिस अच्छे से किया होगा तो हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स भी बेहतरीन कर रहे हैं। गोमती ग्लेडिएटर्स के द्वारा जो पासेस दिया जा रहा है और जिस तरह से बॉल लिया जा रहा है खोआई वॉरियर्स के द्वारा, जब बॉल पास किया जाता है और जिस तरह से गोमती ग्लेडिएटर्स उसको रोककर वो बॉल ले लेते हैं, इसमें एक अनोखा अंदाज है, आई मस्ट से इसमें एक अनोखा अंदाज है। और अभी शायद खोआई वॉरियर्स को समझ में आ गया है कि हमें अपने टीम वर्क में काम करना है, और अभी आप देख रहे हैं खोआई वॉरियर्स आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी तरह से मैदान में फैले हुए हैं ताकि अच्छे से वह आगे बढ़ सके। वहीं गोमती ग्लेडिएटर्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द अब तक जितना उन्होंने किया है तब तक अभी तक फुल्ली फोकस्ड काम कर रहे हैं कि नहीं अभी उनको अच्छे से करना है। उनके पासेस, आई मस्ट से, दे आर जस्ट टेकिंग दिस बॉल्स इन अ वेरी गुड वे। आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही बॉल जाता है हमारे वॉरियर्स के पास, वैसे ही गोमती ग्लेडिएटर्स के कोई ना कोई प्लेयर जिस तरह से उस बॉल को अपने प्लेयर को और यहाँ एक गोल हो सकता था। वही कहा था मैंने, एग्रेसिवनेस अगर आप दे रहे हैं तो थोड़े सोचकर, थोड़े समझकर, क्योंकि गोल पोस्ट के अगर आसपास भी ना जाए तो आपका वो अपॉर्चुनिटी चला जाता है। वो अपॉर्चुनिटी अभी आप दोनों ही टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का 1-1 है। क्यों मिथुन जी? सौरमिता बिल्कुल जा रही हैं आप, सही दिशा पे बोल रही हैं आप। आपकी दिशा नहीं, ये आपकी दिशा जो है ना यही है कि आपने जितने भी चयन किए अब तक कि खेल का अपनी आंखों से, वो सही है एकदम। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखिए लेकिन नहीं, ये वही खिलाड़ी है जो गिर के उठ के मैदान में फिर से जंग लड़ते हैं 12 नंबर के, और अच्छा खेल होगा यहाँ पर आज। पिंक वर्सेस ब्लू का वार चल रहा है यहाँ पर। देखिए तो विनोद जी ने किस तरह से अपने आप को बचाया है। मैं वही बोल रही हूँ ना, आज वॉरियर बन के आए हैं, गिर पड़ के भी हम संभल गए हैं, इस टाइप का हो रहा है आज। जी हाँ, मैं इस बात को ही कहना चाहूंगा कि लंबा केक यहाँ पर सीधे गोल पोस्ट के डी बॉक्स के अंदर। जी हाँ, क्या होता है? नहीं मौका फिर गोलकीपर का। आप मतलब आंखें देखिए
जिन आंखों का मेजरमेंट शायद तो आंखों का डॉक्टर ना कर पाए, इतना लंबा चौड़ा देखते हो, सीधा एकदम निगाहें जो है गेंद पर है कि इतना बड़ा गोल पोस्ट को उन्होंने मतलब तय कर लिया कि इसके अंदर गेंद को जाने नहीं देना है, बॉल को नहीं जाने देना है। और ये थ्रो इन खोवाई का देखते हैं, जी हाँ, डी बॉक्स के अंदर, और अच्छा हेडर यहाँ पर, हेड टू हेड बातें हो रही है यहाँ पर, जी हाँ, चेस्ट पर, ओ खींचे थे लंबा टांग, सोचे थे जोर से हिट करेंगे, बोल जी हाँ बिल्कुल हिट तो किए हैं, लेकिन मसला ज्यादा जोरों से हो गया और निशाने पे भी नहीं लगा। लेकिन हाँ, कोशिशें करती रहनी चाहिए, क्योंकि आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं, इसी तरह से कोशिश आप जारी रखिए, मुकम्मल जहां आपको हासिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कोशिशें जरूर करनी है आपको। अभी दोनों टीम में कोशिशें बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर दोनों टीम में से किसी एक ने भी स्कोर कर दिया है, और अभी आप देख पा रहे हैं सेकंड हाफ का ऑलमोस्ट कुछ मिनट अभी बीत चुका है, अब अगर आप एक गोल नहीं करेंगे तो शायद आप ये मैच टाई हो सकता है। और जिस हिसाब से हमारे दोनों टीम्स आज अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं, आई एम वेरी डाउटफुल कि आज का ये मैच टाई हो सकता है, फुल्ली हो सकता है। आई एम वेरी डाउटफुल, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स देख सकते हैं आप, द गोलकीपर कितने सजग, कितनी ज्यादा फोकस कि नहीं जाना है, बॉल नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। हमारे दोनों ही टीम के जो गोलकीपर्स हैं अमेजिंग वर्क आज दे रहे हैं, एंड यहाँ दोनों टीम्स के जितने प्लेयर्स हैं मस्त से गोमती ग्लेडिएटर्स को बहुत बहुत खूबसूरत टक्कर दी है आज खोवाई वॉरियर्स ने। सौरमिता, यहाँ पर एक चीज ये भी देखना है कि सागर 17 नंबर के खिलाड़ी हैं खोवाई के, उनको मौके दिए जा रहे हैं। उन्होंने अभी देखिए स्लिप शॉट खेला था, शायद वो गिर के मारे थे वो शॉट, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उनको मौके उनको बना के देने चाहिए, क्योंकि वो देखिए वो अच्छा स्ट्राइकर है, आगे जा रहे हैं। देखिए ये सागर की बात कर रहा हूँ, सागर देखिए किस तरह से बह जाइए, बस सागर को ये मौका नहीं छूना चाहिए। और ये सागर आगे बढ़ते हुए देखिए फिर से क्या इशारा होता है यहाँ, देखते रेफरी का, क्या पैर लगा उनके पैरों पर, कोशिश एकदम दम लगा के खेल रहे हैं सागर। और यही मैं कह रहा था, देखिए सागर के पास बहुत सारे मौके थे और उनका डिफेंस देखिए किस तरह से सागर को रोका जा रहा है। मतलब एक नदी को रोकने के लिए सारे महासागर एक तरफ। बिल्कुल, आज वही बात है, खोवाई वॉरियर्स आज एक अलग दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आई मस्ट से इतना बेहतरीन प्रदर्शन जो कि आपने कहा, सागर जी के साथ साथ जितने भी हमारे जैसे टीम नंबर, इस टीम में जर्सी नंबर 11 हो गए, 23 हो गए, मतलब इतना बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा देख रही हूँ ना मैं, जो कि एक बार जो जर्सी नंबर 20 जुएल जी ने जो फर्स्ट गोल किया था, कितना अमेजिंग था, कितने अमेजिंगली उन्होंने जो गोल किया था, मानना पड़ेगा। तो वही बात है कि आज वॉरियर सच में वॉरियर बनकर आए हैं, एंड एक डटकर एक सामना दे रहे हैं कि आज हमें कर दिखाना है। तो वही करो और मरो वाली बात हो गई कि मैं करूंगा, मैं करके ही जाऊंगा। वही गोमती ग्लेडिएटर्स को इतना बेहतरीन टक्कर शायद इस टूर्नामेंट में पहली बार अभी खोवाई वॉरियर्स ही दे रहे हैं। पर वही बात है, फुटबॉल है ये भाई साहब, ये फुटबॉल है, एंड फुटबॉल में लास्ट मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। सौरमिता देखिए, आप इवेंट जो भी स्पोर्ट्स ले लीजिए ना, वो स्पोर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक ऐसा दृश्य आ जाता है ना आंखों के सामने कि अब कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी इवेंट को ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो इस मैदान में जो 11 या 17 या वॉलीबॉल लीजिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब देखने की रणनीति किस तरह से अपनाते हैं आप। अगर रणनीति अच्छी नहीं होगी तो आप पीछे हट जाएंगे, रणनीति अच्छी होगी आगे बढ़ जाएंगे, और आपको एक अच्छी रणनीति के साथ आगे निकलना है। कोच के साथ जितनी भी बातें आपकी हुई है तो सारे यूटिलाइजेशन जितने हैं मैदान पे कीजिए, आप उसको यूटिलाइज कीजिए आपको, क्योंकि मौका है आपके पास। देखिए गोमती का फिर से गेंद, और इस बॉल को किस तरह से गोमती अपने पैरों पर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लट्टू नहीं देखा आपने, लट्टू को किस तरह से घुमाया जाता है, ऐसा लगता है गोमती ने लट्टू बना के रख दिया फुटबॉल को। मौके पर चौका मारना ही तो है अभी, क्योंकि अभी सेकेंड हाफ हो चुका है, सेकेंड हाफ के कुछ मिनट्स ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। तो अब अगर आपके द्वारा एक गोल नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये टाई होने वाला है। और अभी एक अच्छा मौका है गोमती ग्लेडिएटर्स का, क्योंकि उनका 2 मैच ऑलरेडी उन्होंने जीता था, और अभी अगर वो आज ना भी जीत पाए तो उनकी तरफ से एक एडवांटेज रहेगा ही। तो यहाँ ऑलरेडी खोवाई वॉरियर्स को अब थोड़ा और अपना प्रदर्शन दिखाना होगा, वरना उनकी तरफ से अगर वो प्रदर्शन नहीं हमें मिला तो डेफिनेटली आज का गेम टाई अगर हुआ तो एट वे एंड मिस। मिल्टन जी, इतने सारे मिसेस, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज लॉस, क्या कहना चाहते हैं आप?
Yes, it's not a very good sign from the part of the Kwai and also the on the part of the Gomoti gladiators, because the moment you miss an opportunity or any chance, it becomes very difficult for you to come back and pick up another lead, and so they really need to work among themselves and discuss how to make another score at least, so that the Kwai Warriors win the game today. But if they are unable to perform well, it is obvious that the Gomoti gladiators will take away the point today. And but it is needless to say, from the part of the Kwai Warriors, Joel, yes, Joel Di Burma, who actually made his first score on the part of the Kauai Warriors today. He's been playing really well from the left wing as a striker, and he is the only performer that I can see who is giving his 100%, his heart and soul in the game. I don't know why the rest of the other players are not doing much at this point of time, but I think they really need to do better, and so that they can win the game today. Otherwise, they really could not perform well in the previous games, and they need to come up stronger, at least after this first half, and do well this time. And also, it is also needless to say that the Gomoti Gladiators today is also really performing well, because the kind of performance that they're showing today is an awesome sportsmanship. Apart from them missing the opportunities to make their score in the scoreboard, I think the Gomoti Gladiators really have the stamina, to play around and play between the players. And here, this might be a dangerous situation. And what a lucky save by the Kauai. I think that there's going to be a certain decision that's going to be made by the referee here today. Let's see what happens. But there is no signal from the part of the referee out there. The referee is really strict, and he's kept his cool and calm. He is doing really well in the field today. मिल्टन जी, बिल्कुल जिस तरह से देखिए, इस तरह से एग्रेसिव गेम हो रहा है गोमती के द्वारा, और गोमती पहले जिस तरह से रन लेती पहले मैच से, जहां पर 3 गोल 5 गोल तागे थे, वहां से जिस तरह से आगे बढ़ के अगर इतने गोल होते हैं तो दैट मींस इन लोग के अंदर वो जो डिफेंस है, जो उनका जो फॉर्मेशन है, वो बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है इनका, और ये फॉर्मेशन काम भी लगाया उन्होंने। जैसे 5 गोल नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल है। अगर आपका फॉर्मेशन अच्छा होगा तभी ये गोल हो सकते हैं। तो ये आज भी दिख रहा है, वो प्रदर्शन आज भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, खेल अब तक करीबन 50-55 मिनट का हो चुका है, लेकिन देखिए अभी भी क्वाई पीछे नहीं हटी। क्वाई का डिफेंस देखिए, जैसे तैसे करके उनको डिफेंड कर रही है और गोमती को चांसेस नहीं दे रही है। तो ये प्रदर्शन उनका रहना चाहिए, लेकिन हम आशा करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपके जो आइडल हैं, बॉयर है, रोनाल्डो है, तो उनसे ये उम्मीदें रहेंगी इस टीम के इन जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं कि आप अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें अपनी टीम के लिए, और कुछ गोल जो है आप दागे यहाँ पर, और पॉइंट्स टेबल पर आप अपना कुछ पॉइंट्स लेके जाएं यहाँ से। क्यों सौरभिता? बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी, यहाँ आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल दोनों ही टीम में ये जज्बा है कि उनको गोल करना है। और यहाँ आपने जैसे कहा कि क्वाई वॉरियर्स आज काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं गोमती ग्लेडिएटर्स को, जिनका फॉर्मेशन काफी बेहतरीन था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच। उनका जो फॉर्मेशन था, पहले ही मैच में 5 गोल दागे थे उन्होंने, पहले मैच को उन्होंने जीता था, सेकेंड मैच में 3-0 से हराया था।
और अब आज उनका सिर्फ अभी तक एक ही गोल हो पाया है। तो इतना बेहतरीन टक्कर दिया जा रहा है खोवाई वॉरियर्स के द्वारा, उनका डिफेंस इतना बेहतरीन है, जो कि एकदम फर्स्ट से ही मैंने कहा था कि अगर गोमती ग्लेडिएटर्स का अटैक अच्छा है तो यहाँ हमारे खोवाई वॉरियर्स तैयार है डिफेंस के लिए, और काउंटर अटैक इतना बेहतरीन दे रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो यहाँ जब फर्स्ट हाफ में गोमती ग्लेडिएटर्स का पहला जो गोल हुआ था, मुझे थोड़ी सी निराशा हुई थी कि खोवाई वॉरियर्स क्या टक्कर दे पाएंगे, क्या वो टाई हो जाएगा, पर देखिए फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने वो टक्कर दे दी और यहाँ एक बार फिर से मिस। पर एक बात माननी पड़ेगी, हमारे खोवाई वॉरियर्स के गोलकीपर तभी से सजग है, और यहाँ हमारे गोमती ग्लेडिएटर्स के उनके भी जो गोलकीपर है बेहतरीन आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट आज के इस पूरे मैच में अगर देखा जाए तो हमारे खोवाई वॉरियर्स अमेजिंग टक्कर दे रहे हैं उनके अगेंस्ट जो गोमती ग्लेडिएटर्स है, क्योंकि गोमती ग्लेडिएटर्स ने अभी तक इतने मैचों में अभी तक एटलीस्ट 2 गोल्स तो पक्का दागे थे, पर इस मैच में उनके अभी तक एक ही गोल है। अब देखना ये है कि इस सेकंड हाफ में क्या एक और गोल हो पाएगा उनके द्वारा, या आज ये टाई रहेगा। वही हो सकता है कि आज जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे खोवाई वॉरियर्स, आज चेंज आ ही सकता है। आज शायद उनमें वो है ना, वो फायर वो जग गया है, वो दिमाग में है कि आज उनको जीतना है। तो आज अब अगर एक गोल हो गया उनके द्वारा, एंड अगेन अ मिस, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट बट अगेन अ मिस। तो वही बात है, आज दोनों टीम से द्वारा बहुत बेहतरीन कोशिश हो रही है, पर बार बार थोड़े बहुत के कारण मिस हो रहे हैं गोल। एंड यहाँ अब देखना ये है कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मुझे जहां तक लगता है अभी मिथुन जी, दोनों ही टीम एक दूसरे के लिए काफी भारी है, दोनों ही टीम काफी बेहतरीन क्यों कर रहे हैं। तो मिल्टन जी, मैं अभी फुल्ली शॉक्ड हूँ, साथ ही साथ मुझे अभी लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आ गया कि क्या ये टाई तो नहीं हो जाएगा, हो ही सकता है ना। There is a high chances for being tie today, because the Gomoti Gladiators really getting opportunity but unable to make their second score. Both scoring one each today, and it's difficult for them to come up stronger this time, because if they are not changing any of their player today in the middle of the game, then it's going to be difficult, because the players in the field right now are already exhausted. And what a shot over there! Headed tried to make the score, but couldn't really make the score. But the Gomoti Gladiators really have some of the best players in their team, like Ananta Jamatia, then Ratan Kishore Jamatia, Binod Jamatia. You see, most of them seems to be Jamatias over here, and they look really strong and steady. And so there's going to be a player change from the part of the Gomoti Gladiators. Player change in 61 half night. Sanjay Jamatia in, and so that's a nice strategy that they have made on the part of the Gomoti Gladiators. Like I said, there has to be some changes in the player, because the players already are exhausted, and it's only 61 minutes past now, and the game today is of only 80 minutes, because the game has started really late, and it's going to be evening very soon. There's going to be sunset, and they won't be able to play the game in the field. So that's the reason why the referees have come up with a plan of 80 minutes gameplay today. And so the players really need to push harder. They need to be really strategically strong, focus in the ball, and pass the ball between the players, and make the second score. Otherwise, both the team will go tie today. And so the weather is really good, really fine. I think it's cool and calm at this point of time. It should be a fantastic pass, and over there goes the Gomoti Gladiators, shooting it really nice and sweet over there. And so it is needless to say the Gomoti Gladiators played a very important role over there to make their second score. And there goes Gomoti Gladiators with 2, and Khowaii Warriors is 1.
And so now is the pressure for the Khoi Warriors. We thought that the Khoi would actually make the pressure, but it seems that the Gomoti Gladiators only made their way through and have made pressure for the Khoi Warriors today. Khoi Warriors, we don't know if it is your luck or if it is your day, but I guess Joel is hurt over there and he needs to be taken care of. Probably the match team will be called in, and the striker from the Khoi Warriors, the one of the most active player in the ground is being damaged, and this could be a very bad situation for the Khoi Warriors now, because on the part of the Gomoti Gladiators, they have made a pressure by scoring 2, and Khoi Warriors has only 1. So Gomoti Gladiators leading by 1 as of now, and on top of that, the Khoi Warriors top player from today's game, jersey number 20, Joel Debrama, has been injured over there, and the match team has been called in, and so probably it's going to be a very rough time for them, and probably they need to discuss among the players in between this small break that they could actually get in. Probably the stretcher also is being called in so that they can pick the player out of the game for now. Let's see what happens, but it is really not a day for the Khoi Warriors today, up till now. But there can be changes if they make a different approach to the game today, because there is still another at least 20 minutes or so. So even a 1 minute difference can make a different change in the gameplay in such games like football. So this is awesome to see both the teams putting so much of pressure, trying to focus and make the score into the game, into the scoreboard. Let's see what happens. And Joel Debrama is being pulled out of the ground and is being taken care of by the match team at this point of time. And so, lucky for the Gomoti Gladiators, because they have made it 1 lead, and nice game. What a performance. Fantastic showcasing of the game today. मिल्टन जी, जिस तरह से आप इस बात को बोल रहे हैं ना कि अभी वक्त भी कम है और गोल भी कर रहे हैं, फिर से देखिए वही चांस आप दे रहे हैं बार बार गोमती को, और उसका फायदा भी वो ले रहे हैं, तो आपको मौके नहीं छोड़ने, क्योंकि इससे पहले गोमती के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, 5-3। हाँ, तो हमको भूलना, आज 2 गोल हो चुके हैं गोमती के खाते पे, और गोमती के जो फैन है ना वो काफी खुश होंगे कि ये परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि वो चाहेंगे कि ये जो ट्रॉफी है वो गोमती के तरफ चले जाए, क्योंकि ये मैच इस तरह से जा रहा है ना आज कि ख्वाए से ना बनते बन रहा है, कुछ ना निकलते बन रहा है, ना पछते बन रहा है, ऐसा मैच हो गया आज। ख्वाए को देखिए, सागर इस तरह से वहां पर मैदान पर मौजूद है, ख्वाए के 17 नंबर के जर्सी, उसको आप मौका दीजिए, उसके पास आइए, क्योंकि उसको आप नहीं पासेस करेंगे तो आप मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सारे गेम जो है ना वो देखिए आप गोमती के पैरों पर ही रह जाती है, और गोमती जिस तरह से पासेस खेलती है, मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, छोटे छोटे पासेस खेलती है, और एकदम पूरे टीम को देखिए जिस तरह से मैनेज करके अपना फॉर्मेशन को आगे ले जाती है ना, वहां पर वो गोल दे देते हैं। और देखिए वो जो गोल हुआ इससे पहले, देखिए वो जगह खाली था, कितना सुंदर से डी बॉक्स के अंदर एक कॉर्नर साइड पे पास हुआ था कोने पे, और वहां से बॉल को सीधा रख दिया। तो यहाँ पर कोशिश फिर से देखिए, चेस्ट से रोका गया डिफेंस, और यहाँ पर शायद देखते हैं क्या कॉर्नर मिलता है, यहाँ शायद ये इशारा हो गया है, तो अब इसको भी क्या फायदा ले पाएंगे सोरोमिता, क्योंकि मैदान तो आज लगता है गोमती के पक्ष में ही बातें कर रहा है। मैदान भले ही गोमती के पक्ष में बातें करे, यहाँ प्लेयर चेंज, 10 in and 78 out, 10 number jersey in and 78 number jersey out। खोई
वॉरियर्स। तो यहाँ खोवाई वॉरियर्स का अगर हमारा जर्सी चेंज हुआ है, प्लेयर चेंज हुए हैं, तो अब पक्का स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट है। 10 नंबर जो हमारे प्लेयर जुड़े हैं हमारे साथ, देखते हैं क्या रंग लाते हैं, क्या चेंजेस होता है। और जैसा कि आपने कहा था मिथुन जी कि आज ये गेम कुछ डिफरेंट है, पर आप ही ने मुझे कहा था एक बार कि ये फुटबॉल है और फुटबॉल में लास्ट मिनट के लास्ट पल में भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी 10 से 12 मिनट बचे हैं शायद, एंड इन कुछ मिनटों में क्या पता एक गोल दाग दिया जाए हमारे खोवाई वॉरियर्स के द्वारा, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस मैं उनका देख पा रही हूँ वो सबसे डिफरेंट है। हमने जो लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस देखे हैं, लास्ट कुछ मैचेस देखे हैं उनके बदौलत आज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत अमेजिंग है। आज का जो फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, आज की जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आज उनकी तरफ से एक रहेगा कि वो एक गोल दाग सकते हैं। और डिफरेंस क्योंकि जस्ट एक गोल का है, एक गोल का डिफरेंस है, तो कभी भी टाई हो ही सकता है। और क्योंकि फुटबॉल है तो किसी भी मिनट में कुछ भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ डिफेंस अच्छा था, और एल्स यहाँ खोवाई वॉरियर्स ऑलरेडी रेडी है कि उनकी तरफ से एक गोल हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि किस तरह से खोवाई वॉरियर्स एक और गोल कर पाएंगे या नहीं। अगर यहाँ अभी चेंज तब आ सकता है जब गोमती ग्लेडिएटर्स का एक और गोल हो जाए। अगर उनका एक और गोल हो गया तो डिफरेंस फिर 2 का आ जाएगा। अगर नहीं हुआ वो गोल तो पूरा चांसेस है कि वॉरियर्स अपनी तरफ से एक गोल ले ही सकते हैं और टाई हो ही सकता है। इतने देर से एक लग रहा था कि 1-1 टाई होगा, पर अब क्योंकि 2-1 है, अब देखना यह है कि क्या गोमती ग्लेडिएटर्स बढ़ोतरी लेगी या फिर खोवाई वॉरियर्स टाई में जाएंगे, टाई लेकर बढ़ोतरी लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लंबे लंबे पासेस, और फिर से 17 नंबर, और फिर से एक सेफ हो गया है ये बॉल बाय द गोलकीपर ऑफ गोमती ग्लेडिएटर। पूरी तरह से सजग, पूरी तरह से फोकस हमारे गोमती ग्लेडिएटर के गोलकीपर। एंड यहाँ हम देख सकते हैं हमारे खोवाई वॉरियर्स फुल्ली ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि बॉल उनकी तरफ ही जाए, बॉल एक बार एटलीस्ट उनकी तरफ जाए सो दैट गोल हो जाए। पर उनका डिफेंस आज मानना पड़ेगा। आज खोवाई वॉरियर्स इतना बेहतरीन डिफेंस दे रहे हैं जो उन्होंने लास्ट कुछ मैचों में शायद उनका वो दे नहीं पाए थे, या शायद उनका दिन नहीं था, या शायद मैदान की वजह से। पर हाँ, आज का जो परफॉर्मेंस, आज का जो डिफेंस में दे रहे हैं हमारे वॉरियर्स, दैट्स अमेजिंग। क्यों मिल्टन जी? Yes, and so there's been a strategy change in the part of the Khoi Warriors, and they've pushed in player number 10, Ashen Deverma in the field, who is really fresh in his energy right now. And let's see what kind of gameplay he brings into the game today. Let's see what kind of strategy he has, and that he will be able to play today. What a carry through, and this is another score for the Gomoti Gladiators. The Khoi Warriors really had this opportunity to save the ball, but no, they really couldn't do it. It's player number 11 that has scored a goal today again. And it's only another 10 minutes to go, and the Gomoti Gladiators scoring 3 and Khoi Warriors 1, and so the Gomoti Gladiators today leading with 2 scores ahead with the Khoi Warriors. And so it's really nice to see. It's really nice to see that the Gomoti Gladiators shooting into the goal to the Khoi Warriors. And Maite really nicely shot the ball into the box and into the goal post. Really beautiful. So this is how you need to change your strategy in the game. Even at the end of the game, probably you make another 1 or 2 score, and you win the game. Otherwise, what will happen is people will actually remember you as not really trying to play the game to the fullest. That's what remarks will be there. But
Nonetheless, the Kauai Warriors also trying the best, trying to make the score. But the defense team today is really sad. It's really sad to see the way the defense from the Kauai team is performing. Luckily saved by the goalkeeper, and somehow, you know, it's a lucky day for the Gomati Gladiators, getting such opportunities, yet making only few scores. Although they have been, you know, leading the game. ट्रू ट्रू एकदम सही कहा है आपने मिल्टन जी। यहाँ आज डेफिनेटली अब लग रहा है मुझे कि गोमती ग्लेडिएटर्स जरूर कुछ अच्छा खाकर आते हैं एवरी मैच के दिन, क्योंकि हर दिन उनका दिन कैसे हो सकता है। पिछले 2 मैचों में पहले मैच में 5 गोल दागे गए, सेकंड मैच में 3 गोल दागे गए, और इस मैच में भी ऑलरेडी उन्होंने 3 गोल दाग दिए हैं और अभी तक लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं। तो आई एम वेरी डाउटफुल कि क्या क्या हो रहा है। और यहाँ आज मैं एकदम फर्स्ट पे देख रही थी वॉरियर्स इतने बेहतरीन कर रहे थे, खोवाई वॉरियर्स, अचानक से अभी क्या हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दैट, आई एम रियली नॉट गेटिंग दैट क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली आई वांट कि किसी तरह से भी हमारे खोवाई वॉरियर्स एटलीस्ट एक और गोल दागे ताकि उनका कॉन्फिडेंस और बढ़े, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रही हूँ उनका कॉन्फिडेंस फुल्ली लो हो गया है इसके बाद। पर वही बात है, फुटबॉल के लास्ट मिनट में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम रियली डाउटफुल कि आज के इस मैच में शायद खोवाई वॉरियर्स थोड़ा सा भी वरीड हो गए हैं, थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर आ गया है, क्योंकि अब है 2 गोल का डिफरेंस इतनी इजीली तो शायद कह सकते हैं नहीं कवर किया जा सकता। पर पिछले मैच में, कल के मैच में हमने देखा था कि लास्ट कुछ मिनटों में ही वो लास्ट के 2 गोल हुए थे, क्यों, जो वेस्ट वाइकिंग्स ने किए थे। तो इस बार भी शायद कुछ अलग हो जाए, शायद कुछ डिफरेंट हो जाए। देखिए, होनी अनहोनी तो खेल का नियम है, कुछ भी हो सकता है आखिरी पलों में। जैसे कल हम लोग ने देखा था आखिर में ही 2 गोल दाग दिए थे वहां पर एंताम्बी ने। तो ये ऐसा कुछ आप आज हमें देखने को मिलेगा कि नहीं, ये नहीं पता खोवाई की तरफ से। तो और 5-6 मिनट का खेल बचा हुआ है, और इस खेल का जो लेखा जोखा है ना, अब तक का 3 गोल ऑलरेडी दाग दिए हैं गोमती ने। तो किस तरह से देखिए, अच्छा सेव और गोलकीपर आगे अपने बॉक्स से, क्योंकि अभी देखिए कुछ पाने को और कुछ खोने को यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको सिर्फ अभी लड़ाई लड़नी है, पाने को तो आसमान है अभी, क्योंकि आपके अंक तालिका नीचे गिर रही है। हाँ क्वाई, आपको अभी वो फायर करना है, वक्त आ गया है, क्योंकि वक्त सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। अभी आपको वो सारे हथियार जो आपने रखे हैं अपने जेब में, वो सारे डाल दीजिए जहां भी रखे। देखिए फिर भी गोमती आगे बढ़ते हुए, और अच्छा डिफेंड यहाँ पर, अच्छा किक यहाँ पर रोक लिया गया है, उसको गोल होते होते बच गया। लेकिन फिर भी 16 नंबर की जर्सी यहाँ पर सीधा खींच दिया, गोल पोस्ट से ऊपर जाती हुई, कोई मौका नहीं। गोमती अभी भी एग्रेसिव, अपना मान लीजिए अपना वो जो एनर्जी लेवल है ना, वो फर्स्ट टू लास्ट नहीं छोड़ रहे हैं वो। और यही चीज खोवाई में देखनी है हमें। खोवाई को अभी भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आपके पास जो 4-5 मिनट बचे हैं ना, उसका फायदा लीजिए, क्योंकि मौके आपको और नहीं मिलेंगे। आज आपके पास ऐसे भी कुछ पॉइंट्स है नहीं, आप इससे पहले जो मैच हुए 2 मैच आपने कुछ अंक वहां पर हासिल नहीं किए, तो आज तो आपने कम से कम एटलीस्ट गोल तो किए। 1 गोल आपके खाते पे है, तो आपको आगे बढ़ना है। और थोड़ा जो भी है, सागर है सामने 10 नंबर के जर्सी है, एशॉन द बर्बा, तो एशॉन को तो ये सब थोड़े कंट्रीब्यूट कीजिए, आपस में पासेस कीजिए, हल्के पासेस के लिए। फिर से गोमती के पास बॉल, गोमती देखिए प्लेयर कितने करीब रहते हैं, ज्यादा डायमीटर का वास्ता नहीं रखते। और यहाँ पर और फिर से और एक गोल यहाँ पर, और यहाँ पर मौका ही नहीं दे रहे। कि मिल्टन जी क्या कहेंगे आप इस चीज को? ये मौका को चूक नहीं रहे गोमती, हर एक मौके का फायदा ले रहे हैं मिल्टन जी। That's really nice on the part of the Gomati Gladiators today, because they know where they should be playing the ball and they know where they should be shooting the ball. So again, it's Nmete who has made his second score, and it's really nice that he's been doing
he's been doing like such a beautiful gameplay. What a sportsmanship by this man. You know, that dena padega usse. Because this kind of a sportsmanship is really awesome to see. And I don't know if you get to see any other, players in, but these players should really be given opportunity even in the days to come, because I think this is the only match where 4 scores have been made by any team up till date in TSL 2024-2025, and so it's really nice to see the Gomoti Gladiators performing fantastically. Phenomenal game it is on the part of the Gomoti Gladiators today. And the Koi Warriors, still has the opportunity, another 3 minutes or so, you need to push, at least make another score to, keep your heart, that you have tried your best to save yourself, but it's difficult now. At least leading by 4, the Gomoti Gladiators really performing and showing what kind of bull shots they have in the team. देखिए आपने सही कहा, मेथी ऐसे प्लेयर जिन्होंने अभी 2 गोल दागे हैं, और इस तरह से अगर प्रदर्शन रहा गोमती का, तो गोमती सेमी के लिए तो मिल्टन भाई आप जैसे बोले वो एकदम तैयार बैठी है। एब्सोल्युटली। और ये अगर परफॉर्मेंस रहा गोमती का, तो गोमती एक अच्छी जगह पहुंचेगी, और गोमती से लड़ने के लिए जो टीमें आएंगी सेमी में, अगर पहुंच जाती है तो, क्योंकि बहुत सारे खेल बची, अगर गोमती के पॉइंट्स अच्छे रहते पहुंचे, वहाँ वेस्ट किंग्स के अच्छे हैं, यहाँ गोमती के, और गोमती के जिस तरह का प्रदर्शन अभी दिख रहा है ना, तो अपना वो झंडा लहराएगी जरूर। No doubt that the Unukuti is also another very strong contender in the game in this league of TSL 2024-2025. They've been showcasing such a sportsmanship in the previous game as well. We could see the maximum, change in the player in between the game. So that also is a strategy. Here also they've tried almost the same kind of strategy, but. And this is the only yellow card shown by the referee in the field here at Kumulong today between the team Koi Warriors and the Gomoti Gladiators. And so, what long shot over there, if there would have been a player from the part of the Koi Warriors, they could have actually tried pushing the ball into the goal post, but there were no players over there, and so they need to do a little more hard work. But again, this is a replay that's been shown over there. Nice shot, nicely shown, nicely tackled and pushed into the goal post. That was a beautiful shot by Nmete over there. Again, another shot could be there by the team from the... but no, they really did not shoot it really hard. Nmete again trying to shoot, but, I think they really thought that they were offside and they really could not shoot the ball over there. They need a little more energy, but I guess all of them have, drained down the energy now. And that's the end of the game for today. And the winner is Gomoti Gladiators on the 10th match of TSL 2024-25 here at Kumulong Stadium. What a performance by both the teams. Nicely played. And fantastic, phenomenal game by Nmete over there, and shooting at least 2 goals for the team of Gomoti Gladiators. देखिए बहुत बहुत बधाई गोमती ग्लेडिएटर्स को। हम एक सेमीफाइनल का जो चेहरा है वो आज यहाँ देख पा रहे हैं, जिस तरह का इन बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शन है, इसको आप बच्चे नहीं, ये बूम फायर है, और जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है गोमती के द्वारा। तो आज का नाम जो है वो गोमती के नाम रहा है। और अभी जितने भी टीम्स बाहर हैं, जितने भी टीम्स बाहर अभी बैठे हुए हैं, वो टीम्स अभी सोच रही होगी कि गोमती के साथ जिसका भी अगला मैच होगा
उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया आज गोमती ग्लेडिएटर्स ने, क्योंकि मैतेई के जो परफॉर्मेंस है, सोरो खाइबाम एंड मैतेई, और रिप्ले देखिए आप अपने स्क्रीन पर किस तरह से वो ज्वेल ने अपना परफॉर्मेंस दिया था वहां पर। एक सुंदर सा देखिए किस तरह से फुटवर्क देखिए, कितना सुंदर से डाला, एकदम बीच कॉर्नर पे डाल दिया गोल पोस्ट का, बहुत बढ़िया। ऐसा ट्रिक अपने बूट से निकाले है ना कि इनर साइड से ऐसा टो का इस्तेमाल करके खेला है उसको कि गोल पोस्ट के सीधा अंदर, कोई मौका नहीं। तो सोरो खाइबाम जो प्लेयर है, जबरदस्त।